everyone. Welcome to Heritage Stories in Performing Arts. Namaste. Thank you all for joining us on this special day. Today we begin our series, a very special series, Itihas ke Panno se. So welcome, thank you all for joining, and we have with us our storytellers who's going to talk about some amazing stories of unsung heroes throughout the next 2 months. भारत की गाथाएं हैं शौर्य और बलिदान भारत की गाथाएं हैं शौर्य और बलिदान की इस मिट्टी की खुशबू और योद्धाओं के पुरुषार्थ की हम सुनाएंगे बड़े गर्व और शान से हम सुनाएंगे बड़े गर्व और शान से जिनकी वजह से सिर ऊंचा कर चलते सीना तान के और यही कहानियां सुनेंगे आप अगले 2 महीने अगस्त एंड सितंबर every Friday from 7 p.m. So joining us here are the storytellers, and to begin with our storyteller for today, a very special storyteller, Sonia. Sonia, I'm just going to put you on, yes, spotlight. Welcome. Namaste. So a little bit about Sonia. Sonia Bareja Punhani is fondly known as Pied Piper Sonia in the storytelling world, and she has a professional experience of over 20 years. Various experiences, right from an entrepreneur, educator, counselor, storyteller, wellness coach, mentor, and a sales and marketing professional. So her storytelling career spans for over 9 years, and she's been a professional storyteller since 2012 to 2013, wherein she started with corporate storytelling mainly. So alongside, she's also conducted sessions on sexuality and wellness in schools. And ever since, she has been conducting performance-based storytelling across schools, colleges, and festivals. Her strengths are around communication, presentation, and interpersonal skills. She's often been appreciated for her strong voice throw, her modulation and narration. She also brings music into her stories and often uses songs, narration, and poetry in her sessions. And so today, Sonia is going to bring to you a very special, inspiring story of an unsung hero, or should I say heroine? So over to you, Sonia. Welcome. Namaste, Assalamu alaikum, good evening, warakam, sat sri akal. बस आई थिंक इतनी भाषाओं में नमस्ते बोलना आता है मुझे. बट व्हाट अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन सरिता, थैंक यू सो मच. एंड बिफोर आई बिगिन, I cannot start without saying a big thank you to HSPA, Heritage Stories in Performing Arts, for coming out with such a wonderful, fabulous platform. And a big salute to Sarita for taking this initiative and curating this one big event. और जैसा कि सरिता ने बोला कि ये कहानियां चलने वाली हैं अगले 2 महीने तक. वाओ, आपको सिर्फ अपनी चाय का कप और 2 बिस्किट लेकर लैपटॉप पे लॉग इन करना है फ्राइडे 7 बजे अगले 2 महीने तक. और मेरे दोस्त, अगर आप देख पा रहे हैं उनको, और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मेरे बेहतरीन स्टोरी टेलर्स, कहानीकार जिनको कहते हैं, वो सब यहीं पे हैं हमारे साथ, जो बहुत बेहतरीन कहानियां सुनाने वाले हैं. तो शुरुआत करें सरिता? बिल्कुल, प्लीज गो अहेड. Okay, so we need that music. Sarita, are you playing that music? Yes, Sonia, give me a minute. Yeah. I'll just play it for you. Sure.
हर किसी के सपने हैं, हर किसी की कहानी है, बस छनक से पहचान लो, इन घुंघरुओं की दास्तान पुरानी है। घुंघरू क्या सिर्फ एक बेड़ियां हैं या बंधन, या फिर घुंघरू नृत्य का संगीत है, या एक मधुर ध्वनि, या फिर एक घुंघरू नृत्यांगना की पहचान है, उसका मान है और उसकी सम्मान है, या फिर घुंघरू सब कुछ है। जी हाँ, मैं यही घुंघरू हूं। एक ऐसा घुंघरू जो बहुत जमाने पुराने की बात है, एक ऐसी नृत्यांगना के पैरों की शान था, एक ऐसी नृत्यांगना जो मुझे पहनकर बहुत खूबसूरती से थिरकती थी। पर मजे की बात यह है कि उस नर्तकी ने मेरी आवाज को छोड़कर गोलियों की आवाज को गले लगाना बेहतर समझा, क्योंकि वो एक नृत्यांगना होने के साथ साथ एक सैनिक थी। एक ऐसी सैनिक जिसमें दृढ़ विश्वास, स्वाभिमान, स्वतंत्रता पाने का एक जुनून जैसे कूट कूट कर भरा था। बट शायद आप में से बहुत से लोग उस नृत्यांगना, उस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में नहीं जानते होंगे, क्योंकि जैसे एक इमारत जब बनकर खड़ी हो जाती है तो हमें वो इमारत और उसके ऊंचे ऊंचे स्तंभ दिखाई देते हैं, पर इमारत के नीचे की नींव, रोड़ी, कंकड़, पत्थर, वो सब हमें नहीं दिखाई देते। ठीक उसी तरह स्वतंत्रता संग्राम में भी कुछ ऐसे गुमनाम सैनिक थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर, गुमनाम रहकर, हंसते हंसते देश के लिए जान दे दी। मेरी आज की कहानी एक ऐसी ही मशहूर औरत के बारे में है जो पेशे से तो नर्तकी थी, पर दिलो दिमाग और जमीर से एक सैनिक। एक ऐसी सैनिक जिसमें स्वाभिमान कूट कूट कर भरा था। एक ऐसी सैनिक जिसके अंदर स्वतंत्रता को पाने का एक जज्बा था, और उस जज्बे से एक जुनून पैदा हो गया था। मैं वादा करती हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आप एक बार तो श्रद्धा से उस औरत के लिए अपना सिर जरूर झुकाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लखनऊ में एक मशहूर नर्तकी के। यहाँ बाई नृत्य कला में पारंगत थी, इतनी ट्रेन थी कि मानो जैसे भगवान ने साक्षात उनको नृत्य की कला सिखाई हो। लेकिन अजीजुन बाई का मन लखनऊ के इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि उन्हें तो एक जोश, एक दृढ़ता और हर समय देश प्रेमी और देशभक्ति की बातें सुहाती थी। मैं बात कर रही हूँ 1857 के उस दौर की, जब भारत में क्रांति का पहला बिगुल बज चुका था, और उस क्रांति के आंदोलन में अजीजुन बाई एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहती थी। उनके अंदर जोश और जज्बा इतना अधिक था कि एक जुनून की हद तक पहुंच गया, और इस जुनून की हद तक जब वो जज्बा पहुंच गया तो वो लखनऊ छोड़ के कानपुर आ गई, क्योंकि उन दिनों कानपुर में क्रांति का आंदोलन बहुत जोर शोर से था। कानपुर में वो उमराव बेगम के यहाँ लुड़की महल में आकर रहने लगी, लेकिन तब भी उनका मन नृत्य कला में नहीं लगता था। हर समय उन्हें शौक था कि मैं बंदूक चलाना सीखूं, मैं युद्ध की कला सीखूं, किसी तरह से भारतीय सैनिकों के खेमे में बस शामिल हो जाऊं। उनका ये जज्बा देखकर उस समय के नेता नाना साहब और तांत्या टोपे बहुत मुग्ध हो गए, ये देखकर कि 1857 का ऐसा दौर जिसमें औरतें घर संभाल रही थी, बच्चे संभाल रही थी, वहां एक ये मासूम नर्तकी अजीजुन बाई स्वतंत्रता के लिए जोश दिखा रही थी, और तो और देश की आंख और कान बन के रहना चाहती थी। जी हाँ, अजीजुन बाई एक बहुत बढ़िया जासूस और खबरी थी। दिन के समय क्रांतिकारियों के साथ युद्ध लड़ती थी, मर्दाना भेष में दृढ़ता से घोड़े पे सवार होकर गोलियां चलाती थी, दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। और वही अजीजुन बाई शाम को उन्हीं अंग्रेजों की छावनी में, उन्हीं के खेमे में घाघरा चोली पहनकर तैयार होकर नृत्य कला करती थी। बट उस नृत्य कला के पीछे भी उनका एक मकसद होता था, वो खबरें इकट्ठी करती थी और हमारे सैनिकों तक वो खबरें पहुंचाने का काम करती थी, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि भारतीय सैनिकों की मदद किस प्रकार की जाए। उनका ये जुनून देखकर नाना साहब बहुत खुश हुए, और नाना साहब ने अपने खास सूबेदार टीकम सिंह को यह आदेश दिया कि
अजीजुन बाई को युद्ध की कला तुम खुद सिखाओगे। तो टीकम सिंह ने अजीजुन बाई को पूरी युद्ध नीति, युद्ध कला सब कुछ सिखाई। और तो और उस समय के खासम खास घुड़सवार शामसुद्दीन ने उन्हें घोड़ा चलाना सिखाया। और ना सिर्फ घोड़ा चलाना सिखाया बल्कि बंदूक बनाना भी सिखाया। और ये सब करते हुए आजीजुन बाई के हाथ बिल्कुल नहीं कांपते थे। उनकी आंखों में बेखौफ, बेबाकपन देखा जा सकता था। जिन्होंने भी आजीजुन बाई को देखा है वो बहुत खूबसूरती से इसका बयान करते हैं कि आजीजुन बाई एक बहुत पतली, बहुत सुंदर हुस्न की मलिका, बट जब उनको वो युद्ध भूमि में देखते थे, मर्दाना कपड़े पहने, दो दो बंदूकें कंधे पे रखे और घोड़े पे सवार गोलियां दागते हुए, तो वो नृत्य कला में पारंगत आजीजुन बाई नहीं लगती थी। वो एक सच्ची देशभक्त योद्धा लगती थी। खैर वो अपनी इन सब खूबियों के कारण नाना साहब और तांत्या टोपे के साथ बहुत मशहूर हो गई। तो नाना साहब ने उन्हें एक बहुत जरूरी काम सौंपा, वो था खाना बनाने का काम। और अजीजुन बाई ने इस खाना बनाने में भी एक अवसर ढूंढा, क्योंकि खाने के निचले डिब्बे में वो हमेशा गोला बारी, बारूद और असला भर के भेजते थे, क्योंकि वो खबरी थी और पत्र में खबरें लिख लिख के भी खाने के डब्बों में भेजने लगी। और निडर इतनी कि अपनी निडरता से उन्होंने अपने कोठे में रहने वाली सभी महिलाओं को और नर्तकियों को स्वतंत्रता के लिए तैयार कर लिया। वो एक जुनून उन्होंने वहां काम करने वाली हर महिला के अंदर भर दिया और एक मजबूत टोली बनाई। और उस टोली का निरीक्षण और परीक्षण शामसुद्दीन ने किया। और उस टोली की सभी औरतों को अजीजुन बाई ने खुद युद्ध कला सिखाई। और तो और उन्हें बंदूक चलाना भी सिखाया। नाना साहब उनके ऊपर इतना विश्वास करने लगे थे कि उन्होंने अजीजुन बाई के कोठे को एक सिपाहियों का अड्डा बना दिया। एक ऐसा अड्डा जिसमें घायल सैनिकों का उपचार किया जाने लगा। और तो और उस कोठे की जितनी महिलाएं थी, नर्तकियां थी, वो घायल सैनिकों का उपचार तो करती ही थी, बट उनके मनोबल को भी बढ़ाती थी, जिससे वो वापस युद्ध में जाके युद्ध कर सके। बहुत से ऐसे किस्से हैं, लेकिन एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी जिसमें बात है जून 1857 की, जब कानपुर में युद्ध, स्वतंत्रता का युद्ध, क्रांतिकारियों का युद्ध चरम सीमा पर था। जी हाँ, जिस जगह को आज आप कानपुर के नाम से जानते हैं वो उस जमाने में कानपुर कहलाता था। तो कानपुर में स्वतंत्रता सेनानियों की क्रांति चरम सीमा पे थी जून 1857 में। और उसी महीने की बात है जब उत्तेजित, उत्साह से भरे हुए भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी खेमे को चारों तरफ से घेर लिया और अंग्रेजी सैनिक तिलमिला उठे। अंग्रेजी सैनिक कहां सुनने वाले थे। उन्होंने अपनी गोला बारी, बारूद, बम सब निकाले और प्रहार करना शुरू कर दिया, बिना ये देखे कि बाहर औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। बस उन्होंने बम की बारिश कर दी। पूरे कानपुर में ऐसी बमबारी हो रही थी जैसे मानो बारिश गिर रही हो। देखते ही देखते पूरे कानपुर की सड़कें लाशों से घिर गई और उन लाशों में अधिकतर बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं थी। उस युद्ध में एक महिला, एक नर्तकी जो बिना डगमगाए युद्ध कर रही थी, वो अजीजुन बाई थी। घोड़े पे सवार, तीन तीन बंदूकों का बोझ उठाए और युद्ध में बिल्कुल ना डगमगाती हुई अजीजुन बाई अंग्रेजों पर गोलियां बरसाती जा रही थी। बहुत देर तक जब यह युद्ध चलता रहा, लेकिन अंत में नाना साहब और तांत्या टोपे की पराजय हुई और उन्होंने वहां से निकल जाना उचित समझा और वो इस कार्य में सफल भी रहे। नाना साहब और तांत्या टोपे निकल जाने में सफल हुए, बट दुर्भाग्य की बात ये कि अजीजुन बाई अंग्रेजों के हाथ चढ़ गए। अंग्रेज अफसर अजीजुन बाई की हुस्न के, उनकी कला के बहुत दीवाने थे। इतने दीवाने कि जब एक अंग्रेजी आला अफसर ने अजीजुन बाई को देखा तो उन्होंने उसे आंखों में आंखें डालकर, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि अजीजुन बाई, तुम तो बहुत बढ़िया नर्तकी हो, हमारी दिलो जान में बसती हो। बस इतना बता दो कि किन सैनिकों की मदद कर रही थी। हम ना सिर्फ तुम्हें बख्श देंगे बल्कि तुम्हें इज्जत भी देंगे। उस अंग्रेज का इतना कहना था कि अजीजुन बाई ने बेखौफ, बेबाक, पूरी आंखें खोलकर उस अंग्रेज की आंखों में आंखें डालते हुए जवाब दिया और कहा, भले ही तुम मेरी आवाज छीन लो, पर गजलें गाने वाली ये गायिका उफ तक न करेगी। भले ही तुम मेरी ये खूबसूरत खाल खींच लो, ये खाल जिसका सारा जमाना दीवाना है, पर मैं फिक्र तक ना करूंगी।
भले ही तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, पर मैं आहट ना करूंगी। पर कमबख्त ये जान लो, कमबख्त ये जान लो कि आजीजन जान भले ही दे देगी, पर उन पाक शफाक क्रांतिकारियों का नाम अपनी जुबान पर नहीं लाएगी, कभी नहीं लाएगी, क्योंकि वो क्रांतिकारी तो मेरे मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, और तुम अंग्रेजों की घिनौनी साजिश से भारत मां को आजाद कर ही लेंगे। उनका इतना बेखौफ बेबाक रूप देखकर अंग्रेज तिलमिला उठे। उन्हें इस बात का गुस्सा अधिक था कि एक मजबूर लाचार औरत, एक नर्तकी की इतनी हिम्मत कि वो उनके सामने खड़े होकर इतने भयंकर शब्द बोल रही थी। अंग्रेज तिलमिला उठे, गुस्से में बिल्कुल इधर से उधर भाग रहे थे, और इतने में जो अंग्रेजी अफसर था उसने आजीजुन बाई को एक तोप से बांध दिया, और बाकी सब अधिकारियों ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। और वो गोलियां तब तक चलती रही जब तक आजीजुन बाई के प्राण थे, और उन्होंने ये नहीं देखा कि कितनी गोलियां बरसानी पड़ी एक मासूम नर्तकी पर। तो ये थी मेरी उस नायिका की कहानी जिनके पैरों में बांधकर मैं बहुत इतराता था, जिनके पैरों में जब मैं बनता था तो वो थिरकती थी। एक ऐसी नायिका, एक ऐसी नर्तकी जो बहुत बहादुरी से भारत के लिए लड़ी, या मैं कहूँ भारत की आजादी के लिए लड़ी, कभी पर्दे के पीछे तो कभी पर्दे में। ये थी आजीजुन बाई की कहानी। आजीजुन बाई की शान में कल रात बैठ के एक कविता लिखने की कोशिश की मैंने। हालांकि मैं खुद कविताएं नहीं लिखती हूँ, बट बहुत मन हुआ कि आजीजुन बाई के लिए कुछ कुछ पंक्तियां लिखूं, तो वो शायद अपने आप ही वो पंक्तियां कागज पे आती गई और पूरी होती गई। तो अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं ये पंक्तियां कुछ पढ़ना चाहूंगी। पैदा हुई नर्तकी के यहाँ, घुंघरुओं में बसता था उनका जहां। पैदा हुई नर्तकी के यहाँ, घुंघरुओं में बसता था उनका जहां। दिलो दिमाग पर छाई थी स्वतंत्रता की चाह, दिलो दिमाग पर छाई थी स्वतंत्रता की चाह, इसीलिए चुनी उन्होंने एक कठिन राह। गोली से ना डरती थी जो, गोली से ना डरती थी जो, अंग्रेजों को धूल चटाती थी वो। थिरकते हुए भी कान थे तेज। अगर आपने मेरी कहानी ध्यान से सुनी है तो मैंने उसमें जिक्र किया था कि आजीजुन बाई एक खबरी और जासूसी थी। थिरकते हुए भी कान थे तेज, लड़ती थी वो मर्द के भेस। तोप भी जिसे डरा ना सकी, तोप भी जिसे डरा ना सकी, अंत तक डटी रही कभी ना रुकी। मौत से भी कभी डरी नहीं, मौत से भी कभी डरी नहीं, स्वतंत्रता मिलेगी ये कहते हुए चली गई। स्वतंत्रता मिलेगी ये कहते हुए चली गई। तो ये है मेरी कहानी, एक ऐसी गुमनाम नायिका के बारे में जो भारत की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने जान दे गई। आशा करती हूँ आपको ये कहानी प्रेरित करेगी या प्रेरित की होगी। अगर आप सुन रहे हैं, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाह सोनिया, दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और आपकी जो कविता है वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। So wonderful, and thank you so much for coming on to Itihas ke Panno se and sharing this very inspiring and unknown story. So can you share with us what actually made you choose this story to tell on this platform? That'd be really nice. I'm sure everybody would love to hear that. Yeah. Okay. तो जब आपने कहा कि इतिहास के पन्नों से स्वतंत्रता की एक कहानी चुननी है, ये इन आंसुओं के लिए माफी चाहूंगी, बट आंसू किसी के नहीं होते ना, कभी भी बह जाते हैं। तो आंसू ये भी नहीं समझेंगे कि काजल भी बह जाएगा। तो खैर माफी चाहती हूँ इन आंसुओं के लिए। बट सरिता, जब आपने कहा कि इतिहास के पन्नों से कुछ स्वतंत्रता की कहानियां चुननी है, तो हम बचपन से स्वतंत्रता की कहानियां पढ़ते आ रहे हैं। बहुत से संग्राम की कहानियां, म्यूटिनी की कहानियां, इंडिपेंडेंस की कहानियां, जिसमें 1947 के आसपास के नेताओं की कहानियां हैं। वो नेता जो मंच पर रहकर लड़े, जिनके ऊपर किताबें, किस्से, कहानियां भर भर के लिखी गई। पर
कोश जब शुरुआत की तो उन्हीं में से किसी एक सेनानी को मैं शायद लेने वाली थी, बट लोग कहते हैं कि आप अपनी कहानी चुनते हो, और कहानीकार भी यही बिलीव करता है, ये एक विश्वास है कि हम अपनी कहानी चुनते हैं, बट मेरा ये विश्वास है कि कहानी मुझे चुनती है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, हर बार ऐसा ही होता है कि मैं जिस कहानी को लिखने बैठती हूँ या जिस कहानी को करने का सोचती हूँ, वो ना करके कहानी ऑटोमेटिकली मुझे चुन लेती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे आप सुनाओ। तो इस कहानी के साथ भी यही हुआ कि जब मैं रिसर्च कर रही थी, किताब पढ़ रही थी या हिस्टोरियंस के साथ बात कर रही थी, तो अचानक से लखनऊ की और कानपुर की इन गुमनाम नायकों का जिक्र आया। तो हजरत महल के बारे में तो हमने सबने पढ़ा है, क्योंकि वो भी एक बहुत प्रसिद्ध सेनानी थी, नर्तकी थी, उनके बारे में काफी लिखा भी गया है। तो मैं ये सोच रही थी कि कोई ऐसी गुमनाम कहानी जिसे बहुत लोगों ने ना सुना हो। तो जैसा मैंने कहा कि कहानी मुझे ढूंढ लेती है, तो ये कहानी भी ऐसा हुआ कि मेरे गोद में आकर गिरी, और ऐसी गिरी कि वो दिल में गिरी कि ये कहानी, हालांकि इस कहानी के बारे में अगर आप नेट पे सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा फैक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो पिछले तकरीबन 12 दिन से सरिता और मैं काफी हिस्टोरियंस के साथ बात कर चुके हैं, क्योंकि हम गलत फैक्ट्स नहीं प्रेजेंट करना चाहते थे। हम चाहते थे कि इस कहानी के जरिए हम एक ऐसी औरत की कहानी बताएं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वुमेन लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, एक औरत की शक्ति की बात करते हैं। तो जब कहानियां सुनाने का वक्त आता है तो हम बहुत से, मेरे सब जो उम्दा कहानीकार यहाँ बैठे हैं वो सब इस बात से अग्री करेंगे कि हम औरत की कहानी को बहुत बहुत प्राथमिकता देते हैं। वी गिव प्रायोरिटी फॉर स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स, स्टोरीज विद स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स। सो इस कहानी के बारे में जितना भी अवेलेबल था, मैं जब उसको पढ़ती गई या लिखती गई तो ऐसा लगा कि बहुत जरूरी है इस कहानी को पेश करना, बहुत जरूरी है, बिना तोड़े मड़ोड़े, बिना उसके फैक्ट्स को इधर उधर किए, चाहे उस कहानी को ऐसा लगे कि हम सिर्फ एक नैरेटिव की तरह सुनाएं, या उसको एक मसाला डाल के भी प्रेजेंट किया जा सकता था कि युद्ध में ये हुआ या 1857 की क्रांति में ये हुआ। जब मैं ये कहानी लिख रही थी तो दिल से यही आवाज आई कि जो वो एक नर्तकी थी, बस मैं उनकी कहानी सुनाना चाहती थी कि एक नर्तकी इतनी मशहूर, जिन्हें हुस्न की मलिका कहा जाता था उस जमाने में, और नृत्य में ऐसा कि मानो साक्षात माँ ने उनको वरदान में दिए हों घुंघरू। बट आप सोचिए कि 1857, हम आज भी औरतों के बारे में और उनके स्ट्रगल्स के बारे में बात करते हैं, और मैं बात कर रही हूँ 1857 की। पता नहीं कितने साल, कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैं मैथ्स में थोड़ी कमजोर हूँ। तो जितने भी साल पहले की बात है, आप सोचिए उस समय की एक औरत, एक बहुत नाजुक सुंदर औरत, जिसे हर पल ये खतरा रहता होगा अपनी सुंदरता को लेके, और सोचिए कि वो मर्दों के भेष में 3-3 बंदूकें लेकर घोड़े पे सवार होके सिर्फ और सिर्फ भारत की आजादी के लिए युद्ध भूमि में उतर जाती थी। तो बस इस कहानी ने मुझे चुना सरिता, मैंने इस कहानी को नहीं चुना। मैं माफी मांगती हूँ जिस भी माँ सरस्वती से कि मैंने इस कहानी को नहीं चुना, इस कहानी ने मुझे चुना है। और आशा करती हूँ कि माँ से, और दुआ करती हूँ कि जितनी भी मैंने सुनाई वो बैठी हैं कहीं पे तो वो सुन के आशीर्वाद देंगी और शायद खुश हुई होंगी, ये उम्मीद करती हूँ। एब्सोल्युटली। एंड सोनिया, जैसे आपने कहानी सुनाई, जो कहानी आपने चुनी, जैसे आपने सुनाई, हमें every step we could feel what you were going through. We could feel her passion. We could feel her intention, and we got goosebumps. I'm sure everyone here agrees with it. So firstly, thank you so much for coming on Itihas ke Panno se and choosing this story to share it with all of us. If there are any questions or anybody wants to share something with Sonia, please feel free to unmute yourself and talk to her, and we can see how emotional she is also. So thank you so much, Sonia, for my pleasure, Sarita. sharing Totally a part my of pleasure. In fact, I should be thanking you a lot for giving me this platform to talk about Azizun Bai, to talk about a woman who, despite all odds, she became a winner. So yeah, so thanks to you and your platform and this whole space, the sacred space, as
I would say. And in fact, I also want to mention a quick thing which I heard from a very renowned storyteller, Mr. Paul Jackson. उनकी एक पोस्ट कल परसों कुछ वायरल हो रही थी पड़ी, तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात उस पोस्ट में लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि स्टोरीज एक गिफ्ट हैं, तो कहानियां जो हैं एक भेंट हैं. You know, he says that when you share a story, you share a gift. So ये बहुत उम्दा एक बात है और बहुत खूबसूरत एक बात है, जिसका अर्थ जो है, जिसका मीनिंग जो है बहुत डीप है. कि जब हमने एक कहानी लिख के शेयर करी या कोई एक पुरानी कहानी शेयर करी, तो हमने वो यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं जूम में या फेसबुक लाइव में, वो एक भेंट की तरह आप इसको लेके जाइए. और बस जैसे आप अपने भेंट को संभाल के रखते हैं, किसी के गिफ्ट को बहुत प्यार से रखते हैं, बस इस कहानी को भी उतने ही प्यार से रखिए, उतने ही सहेज के, और इससे इंस्पायर होइए. Yeah. Thank you so much. And that is the intention of HSPA and Itihas Ke Panno Se, to bring in stories which are unknown, to bring in stories of unsung heroes, and heroes is just a term, to bring in the stories of unsung heroes and heroines, if I may say so, and people who are not known, but they have decided to have at that point put the country in front and before everything else. And I hope it inspires all of us to do a little bit towards our country. And so we have a lot of interesting such stories coming ahead every Friday at 7 p.m. throughout the month of August and September. So stay tuned to Itihas Ke Panno Se. And with all your support, we hope to continue to bring such amazing stories by amazing storytellers. And thank you once again, everyone, for logging in and joining us and watching us live. Sonia, thanks to you again. And thanks to all the fellow storytellers who are here to support. And we are going to listen to you next week. So stay tuned for Akshay Gandhi, who's going to come with another story on the 14th of August. And with that, we take your leave. Thank you so much for joining us this evening on Itihas Ke Panno Se.